How did forest rules affect cultivation? One of the major impacts of European colonialism was on the practice of shifting cultivation or Sweden agriculture. This is a traditional agriculture practice in many parts of Asia, Africa, and South America. यूरोपीय उपनिवेश का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत यानी कि पुराना तरीका था। इसमें कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लादिंग, अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चिकमेन, श्रीलंका में चेना व हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धया, नेवड़, झूम और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम इस खेती के थे। घुमंतू in shifting cultivation, parts of the forest are cut and burned in rotation. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 8 years for the forest to grow back. A mixture of crops is grown on these plots. घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और चलाया जाता है। मानसून पर पहली बारिश में के बाद इस राख में यानी जो आग लगाई जाती है उसकी राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2-1 साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल तक के लिए यह ज़मीन छोड़ दी जाती है, जिसे कि परती ज़मीन कहा जाता है, जिससे वहाँ फिर से जंगल पनप जाए यानी अपने आप पेड़ पौधे उगाए। इन भूखंडी क्षेत्रों में मिश्रित फसलें भी उगाई जाती थी, जैसे कि मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार, बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियाँ उगाई जाती थी। European foresters regarded this practice as harmful for the forest. That land which could not grow trees for railway timber. When a forest was burned, the danger of the flames spreading and burning valuable timber. Shifting cultivation also made it harder for the government to calculate taxes. The government decided to ban shifting cultivation. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. Some had to change occupations, while some resisted through large and small rebellions. यूरोपीय वनरक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उनका मानना था कि कुछ सालों पर अंतर खेती जा रही हो तो ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। साथ ही जंगल जलाते समय बेशकीमती पेड़ों के भी चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है। घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था, इसलिए सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को यानी कि वहाँ के स्थानीय लोगों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। विस्थापित का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थानों को भेजना
या जगह खाली कर उन्हें दूसरी जगह के लिए चेंज करवा देना। कुछ को अपना पेशा यानी व्यवसाय भी बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध भी किया। Who could hunt? The new forest laws changed the lives of forest dwellers in yet another way. Before the forest laws, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer, partridges, and a variety of small animals. The customary practice was prohibited by the forest laws. Those who were caught hunting were now punished for poaching. Hunting of big game became a sport. In India, hunting of tigers and other animals had been part of the culture of the court and nobility for centuries. But under colonial rules, the scale of hunting increased to such an extent that various species became almost extinct. The British saw large animals as signs of a wild, primitive, and savage society. They believed that by killing dangerous animals, the British would civilize India. They gave rewards for the killing of tigers, wolves, and other large animals on the grounds that they posed a threat to cultivation. A British administrator, George Yule, killed 400 tigers. Initially, certain areas of forest were reserved for hunting. Only much later did environmentalists and conservators begin to argue that all these species of animals needed to be protected and not killed. शिकार की आज़ादी किन लोगों को थी और किन लोगों को बंदिश में रखा गया? जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जहां एक तरफ वन कानून ने लोगों को शिकार के परंपराधिकार से वंचित भी कर दिया, वहीं बड़े जानवरों का शिकार एक खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा है, जैसा कि हम मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों का शिकार का मजा लेते हुए देखते हैं। किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी ब्रिटिश शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लगभग पूरी तरह लुप्त यानी कि गायब हो गई। अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर जंगली, बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य समाज बनाएंगे। बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए गए कि इनसे किसानों को खतरा उत्पन्न होगा।
1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में करीब 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए थे। धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा भी जाने लगा था। अकेले जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था। प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए ही आरक्षित थे। काफी समय बाद पर्यावरणविदों और संरक्षणवादियों ने आवाज उठाई इसके विरुद्ध कि जानवरों की इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होना चाहिए, न कि इन्हें मारा जाना चाहिए, और इसके विरोध में वो आवाज उठाने लगे।